राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिवोस्तोक में 3 सितंबर 2021 को आयोजित छठे पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र के दौरान एक वीडियो संबोधन दिया। रूसी सुदूर पूर्व के विकास के लिए राष्ट्रपति पुतिन के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में रूस के एक विश्वसनीय भागीदार होने की अपनी एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने विकास में भारत और रूस की प्राकृतिक पूरकताओं को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी के अनुरूप दोनों पक्षों के बीच अधिक से अधिक आर्थिक और वाणिज्यिक जुड़ाव के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने महामारी के दौरान उभरे सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में स्वास्थ्य और फार्मा क्षेत्रों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने हीरा, कोकिंग कोल, स्टील, लकड़ी आदि सहित आर्थिक सहयोग के अन्य संभावित क्षेत्रों का भी उल्लेख किया। 2019 की मुख्यमंत्री यात्रा की तरह प्रधानमंत्री ने रूस के सुदूर पूर्व के 11 क्षेत्रों के राज्यपालों को भारत आने का निमंत्रण दिया। सूत्रों के अनुसार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें प्रमुख भारतीय तेल और गैस कंपनियां शामिल हैं, ईईएफ के ढांचे के भीतर भारत रूस व्यापार वार्ता में भाग ले रही हैं। आपको बता दें कि पीएम 2019 में 5वें ईईएफ के मुख्य अतिथि थे, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार किया गया था। I am delighted to address the Eastern Economic Forum and thank President Putin for this honor. Friends, in Indian history and civilization, the word Sangam has a special meaning. It means confluence or coming together of rivers, people, or ideas. In my view, Vladivostok is truly a Sangam of Eurasia and the Pacific. I applaud President Putin's vision for the development of the Russian Far East. India will be a reliable partner for Russia in realizing this vision. In 2019, when I had visited Vladivostok to attend the forum, I had announced India's commitment to an Act Far East policy. This policy is an important part of our special and privileged strategic partnership with Russia. Excellency, President Putin, I remember our detailed conversation during the boat ride from Vladivostok to Zvezda during my visit in 2019. You had shown me the modern shipbuilding facility at Zvezda and had expressed the hope that India would participate in this great enterprise. Today, I am delighted that one of India's biggest shipyards, Mazgaon Docks Limited, will partner with Zvezda for construction of some of the most important commercial ships in the world. India and Russia are partners in space exploration through the Gaganyaan program. India and Russia will also be partners in opening up the Northern Sea route for international trade and commerce. Friends, the friendship between India and Russia has stood the test of time. Most recently, it was seen in our robust cooperation during the COVID-19 pandemic, including in the area of vaccines. The pandemic has highlighted the importance
of the health and pharma sectors in our bilateral cooperation. Energy is another major pillar of our strategic partnership. India-Russia energy partnership can help bring stability to the global energy market. My Minister of Petroleum and Natural Gas, Mr. Hardeep Puri, is in Vladivostok to represent India at this forum. Indian workers are participating in major gas projects in the Amur region. From Yamal to Vladivostok and onward to Chennai, we envisage an energy and trade bridge. I am happy that the Chennai-Vladivostok maritime corridor is making headway. This connectivity project, along with the international north-south corridor, will bring India and Russia physically closer to each other. Despite the pandemic, related restrictions, there has been good progress in strengthening our business links in many areas. These include long-term supply of coking coal to the Indian steel industry. We are also exploring new opportunities in agro-industry, ceramics, strategic and rare earth minerals, and diamonds. I am happy that diamond industry representatives from Shakha Yakutia and Gujarat are having a separate interaction as part of this forum. I am confident that the $1 billion soft credit line announced in 2019 will create many business opportunities between both countries. It is also useful to bring together the most important stakeholders, regions of the Russian Far East and relevant states in India on the same platform. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज अपने संबोधन में पोषण माह के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर जनता से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि पोषण माह आंगनवाड़ी की बहनों को नमन करने और उनके कार्यों की सराहना करने का अवसर है। मंत्री ने जनता को दिए गए सुझावों के लिए धन्यवाद दिया। हमारा प्रयास है कि आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर जो प्रादेशिक व्यंजन है, जिसमें आयुष मंत्रालय का भी योगदान है, जिससे अफोर्डेबल प्राइस पे हम पौष्टिक आहार महिला और बच्चे को कैसे उपलब्ध हो इसकी जानकारी दे पाए, ये जल्द ही पोषण ट्रैकर पर उपलब्ध कराएंगे। मैं आशावादी हूँ कि आप बहनें इस जानकारी को भी अपने आंगनबाड़ी की हर बेनिफिशियरी बहन और बच्चे के परिवार तक पहुँचाएंगे। एक बार फिर ये महीना नहीं बल्कि पूरा वर्ष जब आंगनबाड़ी में हमारी गर्भवती माताएं, बहनें और बच्चे संरक्षित रहते हैं, वो वर्ष आपका है। पोषण माह राष्ट्र के लिए मौका है कि हमारी आंगनबाड़ी की बहनों को हम बतलाएं कि हम आपकी सेवाओं के लिए कितने आभारी हैं। मैं आशान्वित हूँ कि आज मैंने जिन सुझावों की आपसे दरखास्त की, जल्द ही आपसे वो मैं पा पाऊंगी और आपके साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर पाऊंगी। पोषण माह में भारत सरकार की 18 मंत्रालयों के समन्वय से प्रदेश की सरकारें भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि पोषण महीना एक उत्सव के रूप में देश भर में मनाया जा रहा है और पोषण माह का एक अलग पोर्टल भी उपलब्ध है, जिसमें आप आपके आंगनबाड़ी में क्या गतिविधि कर पाई हैं, क्या फोटोग्राफ्स आप उपलब्ध कर पाई हैं अपने लिए, उन सबको साझा कर सकती हैं। हम आशा करते हैं कि आपके इस उत्सव की एक झलक हम देश की राजधानी में भी देख पाएंगे। एक बार फिर मंत्रालय की ओर से सभी आंगनबाड़ी बहनों को बहुत बहुत आभार और पोषण माह की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से एक बार समस्याओं से घिर चुका है और व्यापारी परेशान हैं। कोरोना काल के बाद एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर और फर्नीचर मार्केट की समस्याओं को लेकर, विकास से जुड़ी हुई खबरों को लेकर
आपके बीच फिर से आ रहा है आपका लोकप्रिय हिंदी दैनिक समाचार पत्र इंडिया दर्पण अपना एक रंगीन विशेषांक को लेकर। साथ ही आप के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर है जब आपकी बात नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया जाएगा। आपकी आवाज़, आपकी समस्या प्रशासन से लेकर राजनेता और सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा राष्ट्र सर्वप्रथम की मीडिया टीम। आप अपनी बात बेहिचक मीडिया टीम को बताएं, उन्हें सहयोग करें और समस्याओं से रूबरू कराएं। आपकी बात कैमरे में कैद होगी। आपकी समस्या जब कैमरे में कैद होकर सरकार के पास, प्रशासन के पास, संबंधित विभाग के पास जाएगा तो एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर और फर्नीचर मार्केट, जो सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों करोड़ की टैक्स देती है, विकास की दिशा में फिर से एक बार कदम बढ़ाएगा। ऐसी उम्मीद है 31 अगस्त से 7 सितंबर तक राष्ट्र सर्वप्रथम की मीडिया टीम आपके बीच। आप अपनी बात जरूर कहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के उपरांत मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों से भेंट एवं राहत सामग्री का वितरण किया। गोंडा जिले में इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस बारिश के मौसम में तीसरी बार लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है और प्रदेश के 15 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। हालांकि समय से किए गए प्रयासों के कारण इस बार नुकसान कम हुआ है। इस दौरे में आज मैं भी जनपद गोंडा के प्रभावित गांवों का सर्वेक्षण करने के बाद यहाँ पर कुछ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री यहाँ पर वितरण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। प्रदेश के अंदर लगभग 15 जनपद वर्तमान में बाढ़ से प्रभावित हैं। ये तीसरी बार इस सीजन में बाढ़ का सामना प्रदेश के विभिन्न जनपद वासियों को करना पड़ रहा है। नेपाल से आने वाली नदियों, खासतौर पर सरयू, घाघरा, शारदा, राप्ती और अन्य सहायक नदियों के कारण वर्तमान में हमारे सभी जनपद प्रभावित हुए हैं। अभी मैंने बहराइच का दौरा किया है। वहां से बाढ़ की समीक्षा, राहत कार्यों की समीक्षा के बाद मैंने गोंडा के उन प्रभावित गांवों का सर्वेक्षण किया, जनप्रतिनिधियों के साथ उसकी समीक्षा की, राहत कार्यों को नजदीक से देखा है। विगत वर्ष की तुलना में बारिश अधिक होने के बावजूद समय से किए गए प्रयासों का परिणाम रहा है कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रफल कम हुआ है। खासतौर पर एल्गिन ब्रिज, जो गोंडा, बाराबंकी और बहराइच की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील बाढ़ का एक बिंदु हुआ करता था, ड्रेजिंग के बाद नदी को चैनलाइज करने का अच्छा परिणाम सामने आया है। और केवल एल्गिन ब्रिज का ही नहीं, बल्कि हमें आवश्यकता पड़ी तो हमने शारदा नदी में भी, अयोध्या के पास, बस्ती के पास सरयू नदी में और राप्ती नदी के भी अलग अलग क्षेत्रों में, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर,
गोरखपुर जनपदों में हम लोगों ने ड्रेजिंग के माध्यम से नदी को चैनलाइज करते हुए बाढ़ बचाव के लिए वहां पर आवश्यक जो उपाय पहले होने चाहिए, बाढ़ आने के पहले होने चाहिए, उस प्रकार की कार्रवाई की। साथ साथ जहां पर कटान अवरोधक कार्य होने थे वह भी समय पर होने के कारण काफी राहत मिली है। इसी के कारण विगत वर्ष की तुलना में अधिक बरसात के बावजूद अभी जनपद के 10 राजस्व गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें 7 पूरी तरह मेरुंड हैं। यहां के माननीय सांसद, माननीय विधायकों के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में जिला प्रशासन लगातार राहत और बचाव के कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। हर पीड़ित परिवार के लिए सरकार ने पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री और धनराशि प्रत्येक जनपद में स्वीकृत किया है। यह भी व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है कि हर एक जनपद में बचाव और राहत करने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट और बचाव के अन्य सभी संबंधित उपाय समय से करने और वहां पर इस पूरी की पूरी टीम को वहां पर रखने और इन सभी कार्यों में सहयोग करने के लिए हमारी टीमें पहले से लगी हुई हैं। राहत और बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था, स्टीमर की व्यवस्था उन सभी जनपदों में करने के साथ ही राहत सामग्री के रूप में भी और एक पीड़ित परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि प्रत्येक जनपद को उपलब्ध कराया गया है। जनपद में डेंगू मलेरिया वायरल बुखार की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से महत्वपूर्ण बैठक संपन्न। डेंगू से बचाव के लिए डीएम ने गली मोहल्लों में जाकर लोगों को किया जागरूक। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार का कहर थम नहीं रहा। डीएम चंद्र विजय सिंह ने जिले में डेंगू को नियंत्रित करने के लिए सीडीओ चर्चित गौंड को डेंगू का नोडल अधिकारी का विशेष अधिकार दिया है। गुरुवार को दोपहर 3 बजे तक 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस कारण से खुद भी गली मोहल्लों में जाकर लोगों को बीमारियों से बचाव के लिए डीएम जागरूक कर रहे हैं। गुरुवार को डीएम ने शहर के कई इलाकों का दौरा कर लोगों को जागरूक भी किया। लोग होंगे यहाँ पे, मैं आप लोगों से 3-4 बातें सिर्फ बताऊंगा, उनको अमल आप लोग कर लो। इधर जितनी गलियां हैं उसमें से हर गली में से 10 लोग ले लो और 2-4 चीजें। एक, सबसे पहले क्या करना है, अगर घर में कूलर है तो उसके पुराना जो उसमें पानी पड़ा हुआ है उसको कूलर को उल्टा करना है। उसमें अगर जो कोई जाली है तो जाली को जला देना है। मच्छर जो अंडा देता है वो उस कूलर की घास वाली जाली में देता है, उसमें फिर से पानी पड़ेगा या कोई भी बात होगी वो फिर पैदा हो जाएगा। ये मच्छर दिन में काटता है और सुबह शाम भी काटता है। और आप देख ही रहे हो कि 2 बच्चे यहाँ पे बीमार है घर में। ये स्थिति हो सकता है और भी जगह हो। मेडिकल कैंप वहाँ पे लगा है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपका बच्चा डिहाइड्रेट ना हो। जो डॉक्टर ORS या वैसी कोई दवाई दे रहा है, ORS सबसे पहले उसको पिलाइए और पैरासीटामोल उसको दीजिए। और अगर उसको जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर साहब के यहाँ जाके उसको ड्रिप लगवाइए। उसको अपने बच्चों को हैवी दवाई नहीं दिलवानी है। जो कोई भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में या कोई भी झोला छाप या अगल बगल का कोई भी आपको परिचित डॉक्टर लग रहा है, उससे आप लोग अक्सर यही कर रहे हैं कि वो हैवी दवाई उनको दे रहे हैं। आइब्रुफ्रेन या कोई भी एंटीबायोटिक वगैरह, वो उस बच्चे की इतनी ताकत नहीं है कि वो उसको झेल पाए। तो आप लोगों को सबसे पहले, अगर उसका बच्चा का बीमार है तो उसको पैरासीटामोल दीजिए, उसका बुखार उतर जाएगा उससे। और उसके जो अगर उसको तब भी नहीं उतर रहा तो गीले कपड़े से जो होता है कि उससे भी आप उसको उतार सकते हो बुखार को। ये चीजें मैंने ये WHO के एक्सपर्ट यहाँ पे देख के गए हैं, वो लोग मुझे भी बता रहे हैं, डॉक्टर्स को भी बता रहे हैं, डॉक्टर की टीम को बता रहे हैं और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं सुबह 7 बजे भी मैं दूसरे मोहल्ले में होके आया था, मैंने वही बातें यहाँ पे बताई, आपको भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अपने घर में कोई भी साफ पानी जिसमें जमा हो सके ऐसी चीज ना करें। मैं अभी इधर झलकारी नगर के दूसरे मोहल्ले में गया था 2 दिन पहले, वहां पे भी मुझे ये स्थिति मिली। कूलर था, कूलर में पूरी तरह से पानी भरा हुआ था, उसमें मच्छर के लार्वा सब कुछ थे। ये स्थिति मुझे लगता है यहाँ पे सबसे ज्यादा है। उसको आप लोग अपने घर से, अपने पड़ोसी के घर से, अपनी गली से जब तक नहीं इसको हटाएंगे तब तक ये मच्छर पनपते रहेंगे। हमें इस चीज को करना पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना शहर में बन रहे गुरु का बाग दीदारगंज का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने
परियोजना के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती के अवसर पर लक्षित निर्माण पूरा हो गया है और पूरी परियोजना इस साल के अंत तक पूरी हो जाएगी। कहते हैं कि 2017 में जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां जयंती के अवसर पर किस बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ का आयोजन किया गया था, तो उसी समय ये तय हो गया था कि हम लोग ये सब जगह का भवन का निर्माण करेंगे और ये सब सारा काम करेंगे। तो बिल्डिंग तो बन गया, लेकिन उसमें जितनी मूर्तियां लगनी है, जितनी चीज़ों को रखवाना है, वो अभी तक नहीं हुआ। इसीलिए हमको देर लग रहा था। तो हम कहेंगे हम जाकर के देखेंगे क्या प्रोग्रेस है। तो आज लेकर के जो भी हमको बताना था, वो जो समय हम लोगों ने शुरू में तय किया था, हमने अभी के सभी अधिकारियों को बता दिया। अब उसी हिसाब से करेंगे और हमारा लक्ष्य है कि इसी साल अंत तक कम से कम ये पूरा हो जाए तो बहुत सुंदर होगा। तो इसके चलते हम आए हैं देखने के लिए। आज सब देख रहे हैं। डॉक्टर चंद्रकेतु तेवतिया ने गौ सेवा और राष्ट्रभक्ति के लिए देश प्रदेश में प्रसिद्धि प्राप्त की है और अपनी बुद्धि के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकारों में विभिन्न पदों पर रहकर देश की सेवा कर चुके हैं। वर्तमान में डॉक्टर चंद्रकेतु आयुष विभाग एनडीएमसी के निदेशक हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम के साथ जुड़िए डॉक्टर चंद्रकेतु से, जिन्होंने प्राचीन भारतवर्ष, गौ और भारतीय संस्कृति पर गंभीर शोध किया है। आपको जो है डेयरी न्यूज और माँ कात्यायनी नेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओं को मेरा प्रणाम। राष्ट्र हित के लिए राष्ट्रवासियों को आप क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, वेद भारत का संविधान है और जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो वेद स्वतः ही ईश्वर की वाणी के रूप में प्रस्तुत हुए। तो उसमें राष्ट्र की और विश्व की दोनों ही परिकल्पनाएं की गई हैं और वसुदेव कुटुंबकम के सारा विश्व अपने एक परिवार के रूप में है, इसका उद्घोष किया गया है। कालांतर में आबादी बढ़ती चली गई, जनसंख्या बढ़ती चली गई, सारा विश्व सीमाओं में सीमित होता चला गया। तो सबसे पहले हम हर शिक्षा के स्रोत रहे, हम विश्व के गुरु रहे और वेदों के माध्यम से हमने जन जन के अंदर विद्याओं को विभूषित किया और विद्याओं के माध्यम से विश्व को सुसज्जित किया। हमारा राष्ट्र उस समय आर्यव्रत कहलाता था और आर्यव्रत की सीमाएं अगर हम देखें तो मिस्र तक, ईरान, इराक, वियतनाम, त्रिपष्टक, नेपाल, भूटान, ब्रह्मा, वर्तमान का पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सभी जो हैं हमारे ही आर्यव्रत के अंग थे। कालांतर में इसका नाम अजनाब व्रत हुआ, फिर ये भारतवर्ष कहलाया। खैर, आज हम सभी भारतवर्ष के वासी हैं। हमारा राष्ट्र आज भी उन विद्याओं से परिपूर्ण है जो विद्याएं कहीं नहीं हैं और हमें गौरव किया जाना चाहिए कि हम भारतीय हैं। और भारतीयों में भी हमें इस चीज़ का गौरव किया जाना चाहिए कि हम वेदानुरागी हैं। हम वेदों के रचयिता तो नहीं, लेकिन वेद हमारी संपत्ति है। वेद भारत का ही नहीं, विश्व के मानव मात्र और प्राणी मात्र का संविधान है। और वेदों में तो स्पष्ट तौर पर लिखा है कि संगच्छदम संवदंतम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानम उपास्ते सहनो अस्तु सहनो भुक्तु सहनो क्रियावहे सहन। तो आप एक ऋचाएँ नहीं, बाकायदा हमारे वेदों में राष्ट्र को समर्पित सूक्त हैं जो राष्ट्र की गाथा को कहते कहते राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। इसी प्रेरणा से माँ कात्यायनी चैनल बहुत कार्य कर रहा है। मैं इनकी पृष्ठभूमि से भी अभिभूत हूँ, इनके जो उद्देश्य हैं मैं उनसे भी अभिभूत हूँ और मैं इनको सादर प्रणाम करता हूँ कि आपका परम जो लक्ष्य है वो जो है राष्ट्र को प्रथम रखकर सभी सोपानों को पाना है। लेकिन हमें उन बिंदुओं पर भी विचार करना होगा कि क्या कारण है कि जो आर्यव्रत पूरे विश्व में था कि वो टूटता चला गया। तो इसके बहुत से कारण रहे हैं, उन कारणों पर कभी विचार किया जाएगा। महर्षि दयानंद ने उसके 7 कारण लिखे हैं सत्यार्थ प्रकाश
में भी उसका वर्णन है। भगवान कृष्ण ने भी बहुत अधिक प्रयास किया कि किसी तरह भारतवर्ष एक रह जाए, लेकिन महाभारत होकर ही रहा। आज के परिवेश में हमें ये देखना है कि राष्ट्र को तोड़ने वाली शक्तियाँ आज भी उतनी ही सक्रिय हैं जैसी अंग्रेज़ों के बाद 1947 के बाद और 1947 में रही। पद और प्रतिष्ठा के वशीभूत होकर देश को तोड़ दिया गया, उसकी सीमाएं बदल दी गई। जो कल तक बोधिसत्व का जहां प्रचार और प्रसार था अफ़गानिस्तान में, आज देखिए किसी अन्य संस्कृति के कारण कैसा दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है, कैसी हाहाकार और कैसी मारामारी हो रही है, और किस प्रकार निरंतर हम टूटते चले आ रहे हैं। तो अपने राष्ट्र के अंदर भी एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि राष्ट्र को राष्ट्र के अंदर रहने वालों से बड़ी घातकता मिल रही है और देश को वो तोड़ना चाहते हैं। अब कुछ परिवेश ऐसा है कि हम सुखद स्थिति में हैं, राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं, उसमें कात्यायनी चैनल भी लगा है। हम सभी का ये सर्वप्रथम कर्तव्य है कि हम राष्ट्र से सब कुछ ले तो रहे हैं, उसके पंच महाभूतों से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश में विराटता प्रदान कर रहा है प्रभु हमें। और हमें 6 ऋतुओं के देश में हम रह तो रहे हैं जहाँ 6 ऋतुएँ नहीं हैं, जहाँ इतनी नदियों के संगम नहीं हैं, जहाँ इतनी विराट, जहाँ हिमालय नहीं है, जहाँ इतना सुंदर जल नहीं है, लेकिन वो सब भारत भूमि पर विद्यमान है। जहाँ सप्त सिंधु, जहाँ 5 नदियाँ पंजाब का कलकल करता हुआ जो अफ़गानिस्तान तक जल जाता था, आज वो छिन्न भिन्न हो गया है कि ये किस प्रकार जुड़े और किस प्रकार से हमारा राष्ट्र पुनः पल्लवित हो, इसी आशा में हम रहते हैं। और हम प्रयास करेंगे कि पुनः अखंड भारत का निर्माण हो और अखंड भारत के हम वासी हों। ओम शांति। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। कोरोना के 4 लाख के करीब पहुंचे सक्रिय मामले। पिछले 24 घंटे में 45,352 केस और 366 लोगों की हुई मौत। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारियां तेज। 2-4 दिन में तारीख का होगा ऐलान, पीएम मोदी रखेंगे आधारशिला। सिख दंगों में उम्र कैद की सजा काट रहे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं मिली अंतरिम बेल। भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव 10 सितंबर को होगा लॉन्च। यूपी में पहली बार 1 लाख गरीब बच्चों ने पाया शिक्षा का अधिकार। RTI के इतिहास में बना रिकॉर्ड। JNU में शुरू होगा विवादास्पद आतंकरोधी कोर्स, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने दी मंजूरी। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। बंगाल में 41% वयस्कों को ही लगा कोरोना का पहला टीका। राज्यों की सूची में आखिरी पायदान पर। 4 साल पुरानी ड्रग मामले में फंसी रकुलप्रीत सिंह, ED के सामने हुई पेश। 47,000 रुपए के पार पहुंचा सोना, वहीं चांदी 0.12% बढ़कर 63,360 रुपए प्रति किलो पर। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
निभं